দূরদর্শন ত্রিপুরায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং তার পাশাপাশি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এর পেছনে কাজ করছেন বহু মানুষ পুরো সিস্টেমটাকে সঠিক রাখার জন্য। আমরা যারা সাধারণ মানুষজন রয়েছি তার বিভিন্ন খুঁটিনাটির দিক নিয়ে হয়তো সেভাবে ভাবি না, কিন্তু এই সমগ্র ব্যবস্থাকে নিপুণভাবে পরিচালনা করার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট নীতি নির্দেশিকা এবং তার জন্য রয়েছে একটি কমিশন। এই কমিশন কিভাবে কাজ করে এবং বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে বিভিন্ন নিয়মাবলী রয়েছে সেগুলি কিভাবে ধার্য করা হয় সে নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ডি রাধাকৃষ্ণন। স্যার, ইউ আর ওয়েলকাম টু দ্য শো। এবং তার পাশাপাশি আমাদের সাথে রয়েছেন শ্রী জীবন কৃষ্ণ সেন, মেম্বার ল, ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন। স্যার, আপনাকেও স্বাগত। Thank you. Sir, first of all, I would like to ask you that what is the role of Tripura Electricity Regulatory Commission? In the Tripura Regulatory Commission was established in 2004 in pursuant to the Electricity Regulatory Commission Act 98 and which was now Electricity Act 2003, and in which the role of the regulator is defined very clearly. Section 86 of Electricity Act define what we will be doing tariff design, promoting the electricity conservation and dispute mechanism also. We are getting involved in that in a day-to-day affairs. Right. Yeah. So, as for the common people or the subscribers, the tariff is a very important word and a key issue also. So, as you have mentioned, the tariff design. So, what is the existing tariff design and what are the prescriptions you are making into that? See, we have got a tariff regulation 2015, Tripura 2015, under which we give a return on equity, O&M expenses, R&M expenses, employees' salaries, everything. We give it a revenue, what will be the revenue collection for the anticipated next year, and what will be the expenditures. Accordingly, we design the tariff pursuant to the all categories of the consumer. We define the consumer's category also in like residential category, commercial category, industrial category. 7-8 categories are there under which we segregate the rates amongst that. So basically, so that the affordability of power consumption of the consumer also comes along with the paying capacity of the consumer. So that is what we basically design in our tariff regulations. So, अभी जो आपने मेंशन किया है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, इस कमीशन कंज्यूमर्स है और जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है, तो एज अ कंज्यूमर हमेशा उनके तरफ से ये चाहत रहती है कि कम से कम दाम में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। और यहाँ पे कॉरपोरेशन का भी एक मोटो होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है क्योंकि मुझे तो ये पूरे सिस्टम को चलाना भी है ना। तो इन दोनों के बीच में आप है, तो क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है आपको ये चेक एंड बैलेंस करने के लिए? बेसिकली आप देखिएगा पिछले 2014 के बाद हम लोगों ने टैरिफ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे सस्ते से सस्ते दरों पे पावर पहुंचे लोगों को, लेकिन साथ में ऐसा जैसा आपने कहा कि हमें ये भी देखना पड़ेगा TSECL जो यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको भी चलाना पड़ेगा, उनके भी खर्चे हैं, वो कैसे उसको बैलेंस किया जाए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कॉस्टली पावर को कैसे बाहर किया जाए, और सेकेंडली सोलर वगैरह जो सस्ते दामों पे आजकल पावर मिल रही है उसको भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं, काफ़ी हद दर्जे तक एनकरेज कर रहे हैं कि लाइक देयर इज़ अ वर्ड इन द मेरिट ऑर्डर डिस्पैचेस। तो उसकी वजह से जो सस्ते दामों की पावर है उसको पहले कंज्यूम किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे महंगे दामों पे आ जाए, तो वो पूरा सिस्टम को हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने 4-5 दिन पहले जो टैरिफ डिज़ाइन किया है, हम लोगों ने यही देखा है कि हम लोग बेसिकली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलेशंस कहता है, जैसे
कोई भी चीज़ कहता है कि इन लोग हमारे पास लेके आए जैसे 125 रुपए का पावर हमको खरीदना है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग फिर डिज़ाइन चेक करते हैं 125 सही है गलत है, फिर देखते हैं कि 110 का फिगर सही हो सकता है, तो हम लोग को 15 को डिसअलाउ करते हैं, जो एनुअल हम लोग के पास टैरिफ आता है। 110 के बाद हम लोग देखते हैं अगर 110 को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं कंज्यूमर्स को शॉक तो नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग बताते हैं देखिएगा 110 तो अभी कंज्यूमर से वसूलना पसंद नहीं, आप 100 वसूलो, बाकी एफिशिएंसी मेजर्स पे आओ, या आने वाले समय में हम देखेंगे कैसे करना है। जो 10 का जो वो है वो रेगुलेटरी एसेट क्रिएट होता है। तो अभी आप देखिएगा हम लोगों का पास जो रेगुलेटरी एसेट जो है अभी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग के पास केवल 60 करोड़ का रेगुलेटरी एसेट है। अभी इस टैरिफ अभी हम लोगों ने जो है 62 करोड़ का रेगुलेटरी एसेट डिसाइड किया हुआ है। दैट मीन्स कि उनको डिस्कॉम को आने वाले समय में ये 62 करोड़ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम कीजिएगा। अभी उनके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को हम लोगों ने 20% के आसपास अलाउ किया। आने वाले समय में हमने कहा कि 18% कीजिएगा, अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कीजिएगा, तो 2-4% का जो कम होगा वो देखेंगे और सस्ते से सस्ते दामों पे पावर लाइएगा। देखते हैं कैसे इसको आने वाले समय में हम फेज आउट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है रेगुलेटर के पास कि इसको रेगुलेटरी एसेट और रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कैसे बैलेंस आउट किया जाए। हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको कम से कम रखा जाए। একদম আসবো জীবনবাবু আপনার কাছে, যে একটা বিষয় আমরা যারা একদম সাধারণ মানুষজন রয়েছি, তো আমাদের কাছে একটাই উদ্দেশ্য যে বিদ্যুৎ পরিষেবা পাওয়া, কিন্তু এটাও বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে এটাও আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ চুরি করার একটা প্রবণতা থাকে, বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রিসিটি চুরি করা হচ্ছে। তো সেখানে আপনাদের কমিশন কি কি আইন প্রণয়ন করছেন? এখানে দেখুন ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টই আছে 135-এ থেফট, 135 থেকে 139 অবধি সেকশন আছে কতগুলি, ওইখানের মধ্যে অফেন্স এই ইলেকট্রিসিটি চুরি করা, এইটার অফেন্স আপ টু 3 ইয়ার্স অবধি জেল হতে পারে একটা লোকের, এবং উইথ বোথ ফাইনও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্পেসিফিক কেস যদি হয় তাহলে ও এটার জন্য গভর্নমেন্ট স্পেশাল কোর্ট এস্টাবলিশ করেছে। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে একটা একটা স্পেশাল কোর্ট আছে, এটা ডিস্ট্রিক্ট জাজ র্যাঙ্কের অফিসারকে দিয়ে ওনাদের ওইখানে সেশন ট্রায়াল হবে, ট্রায়াল হয়ে ওইখানে হবে ডিসাইড হবে ওই লোকটা আসলে বিদ্যুৎ চুরি করেছে কি করেছে কিনা। তখন প্রমাণ হলে ওনার 3 বছর অবধি জেল হতে পারে, এবং জেল ও জরিমানা দুটোই হতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু এখন যেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কারা কারা ঠিক করবেন, যে বা এই যে নিরীক্ষণের যে ব্যাপারটা, ইন্সপেকশনের যে ব্যাপারটা, এটা ডিসকম লাইসেন্সি লোক আছে, ওরা যদি দেখে বা কেউ ইয়ে করে বা পুলিশ যে কেউ করতে পারে বিদ্যুৎ চুরি করছে, কেউ ওদেরকে অ্যারেস্ট করে। এবং লাইসেন্সির কাছে পুলিশ ফৌজও আছে, একটা উইংস আছে, ওরা রেডে যায়, ওরা রেড করে যদি কাউকে পায় চুরি করছে বিদ্যুৎ হুক লাইন বা তখন ওরা সিজ করে ইয়ে করে কেস দিতে পারে। আচ্ছা, ওই কেসটা কোর্টে থ্রু পিএস কোর্টে পাঠাতে পারে। আপনি তো দীর্ঘদিন ধরেই এই রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল দেখছেন। বিগত দিনগুলোতে আমরা যেভাবে দেখতাম যে বিদ্যুৎ চুরি হতো, বর্তমান সময়ে সেটা অনেকটা কমে এসছে। এটা কি ঠিক যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে? হ্যাঁ, বেড়েছে, মানুষের মধ্যে অনেক বেড়েছে সচেতনতা, আগের থেকে অনেক কম এখন এটা। আচ্ছা, অনেক। এবং বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই যে সোশ্যাল মিডিয়া খুব বাড়ন্ত এখন, তো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাওয়ারনেস, এবং একটা জিনিস যেটা জানতে চাইছি যে এখন যারা সাধারণ নাগরিক রয়েছেন ওনারা চান যে কোথাও যদি কোনো ধরনের অনিয়ম হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কিংবা একটা কমপ্লেন লজ করতে, সেখানে কি আপনাদের কমিশন কোনো ব্যবস্থা রাখছেন আগামী দিনে? এটা ও এখন যে বিদ্যুৎ বন্ধু অ্যাপস আছে, ওই অ্যাপসের মাধ্যমে কমপ্লেন দিতে পারে। আচ্ছা, নতুন একটা অ্যাপস তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ বন্ধু, ওই অ্যাপসের মাধ্যমে কমপ্লেন দিতে পারে, যে কোনো ধরনের কমপ্লেন ওই অ্যাপসের মাধ্যমে দিতে পারে। অর্থাৎ কোথাও যদি ইলেকট্রিসিটি চুরি হচ্ছে বা কোথাও কি ওই অ্যাপসের মাধ্যমে কলম আছে, ওই অ্যাপসে গিয়ে আপনার যে কোনো লোক ওইটা কমপ্লেন দিতে পারে। একদমই। স্যার, the next question that I want to ask you, that you are talking about the tariff design, so there are many nuances which the common people are not aware of. Yeah. And
the basic thing is that how will you let people know that you are actually taking measures, commission as well as the corporation, for the betterment of the service? See, basically, Electricity Act provides a very clear thing that transparency has to be there. In fact, in the public hearing, we hold the public hearing also. We publish whatever the petition comes from TSCCL, we publish into the public website and also newspaper advertisement. This time, I'm happy to tell you that when the public hearing took place, more than 40 people attended the hearing at Agartala itself. So that shows the public awareness, and the questions which were raised right from the inefficiency to the theft to the pilferage to the revenue losses, and everything was raised up. And I'm very happy to tell you we have been doing extremely well in the if you take the larger picture of the country. We are now 22nd out of 54 discoms in the country. We are 22nd. A year back, we were 37. So we have improved a lot. And still, there are many scopes of improvements are there. But still, I am telling, and we are focusing, we should come in a single digit. We should not be satisfied 22. We should come in a single digit in next year. And we are trying to that. And how we can come into a single digit? Regulatory assets should be lower. Tariff design should be proper. Collection efficiency should be good. Efficiency parameters are there. Losses, like as you asked in earlier question, the losses are technical and T&D losses plus commercial losses. T&D commercial losses which we cannot bill it. So those are the theft and pilferages. Those are the which have come down drastically low. We were 4-5 years. We were around 40-45%, which has come down to, on a real basis, 27-28%. We are still not happy. As I told you, we should come down to 18%, because as far as my information, being a technical person, I can always say that technical losses have to be like iron losses. Wire electricity goes through a wire, so iron losses are there. It is transforms through a transformer, that copper losses there, some inductive losses, and loading losses, something like that. And that is calculative. These are the technical losses, and the worldwide technical losses are accepted in single digit only. 10%, 12%, 9%, 8%, and in India also technical losses like distribution losses have come down to less than 10% in many of the discom. We are focusing it. 18. We have to have a gradual trajectory how to reduce the losses. We have 5-6 years back we were 38%, 34%, 28%, now 20%. Again next year we are focusing for 18%. In 5-6 years. We should be matching out to 8 to 10%, because ultimately whatever the losses are taking place, basically revenue losses, plus that creates a disturbance in the power system as hook lines and etc. And the third thing, even if the person who is stealing the electricity, he is not taking a safety measures. So electrocutions and all those accidents are taken. Public need to be aware that pay what you are being served for it. So cost to serve and cost of service, which we are to take from which we have to decide so that TSCCL, distribution company, can take it. And we are happy with the performance of the distribution company. And as of date, I can proudly say that in a next 2-3 years time, we will be streamlining with the country's one of the best discoms. सो अभी फिलहाल जो देख रहे हैं कि जब कॉस्ट इफिशिएंसी का बात आ रहा है कि आप लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है ताकि कॉर्पोरेशन भी चल सके और कंज्यूमर को भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन त्रिपुरा का अगर हम सिनेरियो देखें कि यहाँ पे होता क्या है कि ये हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी अखबार में आता ही है कि कहीं पे स्टॉर्म होगा, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में वो जो कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंसेस आता है. तो जो वहाँ के जो लोकल कंज्यूमर्स हैं तो वो कभी होते हैं गुस्से में आ जाते हैं और वो फिर डैमेजेस करते हैं, तो उनका ही डैमेज हो रहा है. तो ये जो गैप बना हुआ है अभी भी रूरल एरियाज़ के साथ वो सिटी में, तो इसके लिए कोई प्लान वगैरह आप लोग कर रहे हैं? लोग प्लान कर अपग्रेडेशन प्लान से सिस्टम को अपग्रेडेशन कर रहे हैं.
बहुत अच्छे से प्लान आउट कर रहे हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एडीबी लोन्स वगैरह भी लिए हुए हैं। ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं, और बेसिकली एज अब स्टॉर्म हुआ, हिल्स ये हुआ, तो उसमें आंधी तूफान चल रहा है तो वायर तो गिरेंगे ही। तो अगर वो स्टैंडर्ड, उसको भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की भी मेंटेनेंस वगैरह पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। तो सिस्टम आने वाले समय में काफ़ी ठीक होगा। अभी ये मेरे ख्याल से जिस तरीके से लॉसेस कम होंगे तो उसके बाद सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, और इन लोग मतलब वील हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ द कंट्री। जहाँ पे बेस्ट है इस टाइप के एटमॉस्फेयर में जहाँ पे भी हो रहा है वो करना पड़ेगा। और जैसे रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है, मैं खुद कह रहा हूँ कि कंजम्पशन को बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ना चाहिए इन कंजर्वेटिव मैनर। लाइक बेसिकली आज से 15 साल पहले किसी के घर में रेफ्रिजरेटर होता था तो बहुत बड़ी बात थी, 10 साल पहले एसी होता तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये अर्बन एरिया से रूरल एरिया में अगर पहुंचेगा तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और कंजम्पशन बढ़ेगा। मैं तो लोगों से कहता हूं कि लिविंग रूम से किचन में अप्लायंसेज, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होगा, गैस का भी कंजम्पशन कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, इंपोर्टेड गैस वो सब भी होगा। तो वील हैव टू टेक कंजम्पशन कैसे बढ़े विद अ कंजर्वेटिव मैनर। कंजम्पशन बढ़ने का ये मतलब नहीं कि मैंने फैन ऑन कर दिया चल दिया। मेरे को देखना है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो इफेक्टिवली अपने लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, इसको भी हम लोग पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन मेथड्स को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो मेरा अपना मानना है कि इंडिया में हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, हमारे 10 लाख 10 लाख के जो कंज्यूमर्स हैं, इसका वी हैव ऑलरेडी टच्ड क्रॉस 1 मिलियन कंज्यूमर। तो उसमें बेसिकली 92% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, मतलब रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं। उनकी कंजम्पशन बेसिकली 300 यूनिट्स के आसपास चल रहा है। इसको हमको 500-600 यूनिट्स के आसपास बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट उतना मतलब बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके मीन्स लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रखना स्टार्ट करेंगे और उसका इफेक्ट क्लीन एनर्जी और क्लीन उसका होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छे से चलाया जाए आने वाले समय में। और तो वो हम देख भी रहे हैं कि वो जो कंज्यूमर के लिए कितने दिक्कत ना हो, उनको आसानी से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, इसके लिए कोशिश जारी है। एक चीज़ हमने देखा है कि जो आम कंज्यूमर हैं तो उनको और भी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिल सके, इसलिए जो प्रीपेड का कनेक्शन है, प्रीपेड मीटर का, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बेसिकली जो आम जनता है वो जानना चाहते हैं कि वो प्रीपेड और पोस्टपेड में डिफरेंस क्या है, और वो अगर प्रीपेड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी जैसे 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी हमें कंज्यूम ऐसे 500 यूनिट करना है, तो 500 यूनिट का एक हफ्ते के अंदर हमने एक हफ्ते के 15 दिन में एक हम लोग 2 बार आप पे कर सकते हो। 15 दिन का कंजम्पशन का आप पहले दे दो और उस इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी आपके, और उसके एक दिन पहले जब खत्म होगा उसका SMS आ जाएगा कि खत्म हो रहा, आप उसको रिचार्ज करो, जैसे मोबाइल वगैरह का चल रहा है। तो वो सिस्टम को हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ जगह चलाया हुआ है और इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छे से आ रहा है। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर्स भी आ रहे हैं। बेसिकली स्मार्ट मीटर का भी जो कंसेप्ट है वही है, प्रीपेड मीटर्स के साथ हम लोग का स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट चलेगा कि बेसिकली हम जितना आप जो कंज्यूम करोगे उसका स्मार्टली कितना आप यूज़ कर सकते हो। TOD मीटर्स वगैरह आ जाएंगे, टाइम ऑफ द डे अभी सस्ती है। अभी जैसे बिजली हमारे पास है और हमारा कंज्यूमर नहीं है, तो हम आपको मैसेज दे देंगे कि आपको अगर बिजली अभी किसी चीज़ के लिए चाहिए, बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को काम आएगा कि आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इस 4-5 घंटे में बढ़ा लो, आपको सस्ते में बिजली मिलेगी। वो बेसिकली TOD का कंसेप्ट वो रहेगा आने वाले समय में। हम लोग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में होगा। और वैसे भी प्रीपेड मीटर से हम लोग के जो रेवेन्यू लॉसेज हैं वो कम हुए हैं। अभी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव हुई है अपने डिस्कॉम्स की, और बिलिंग एफिशिएंसी हुई है, क्योंकि अगर आप बिल ही नहीं दोगे तो वो आदमी कलेक्ट कर कैसे जाएगा। प्रीपेड में 100% बिलिंग है, आप वो देते, तो उसके भी जो लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, उसको भी हम लोग रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसान भाषा में कि पोस्टपेड का अलग ही फायदा है कुछ, पोस्टपेड मीटर जो अभी ले रहे हैं, प्रीपेड का अलग ही फायदा, प्रीपेड का मतलब पहले आप पैसा दे दो उस अलग, जैसे आपके डिस्कॉम आपके जो मोबाइल में है प्रीपेड वो होता है, तो 100 रुपए का प्रीपेड करवा दिया तो वो चलता रहेगा और खत्म होने के पहले आपको अलर्ट आ जाएगा। उसी का फायदा, उसका डिस्कॉम को भी फायदा है और आदमी भी एश्योर्ड
और अभी हम लोग कंज्यूमर फ्रेंडली हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो 2003 भी है और अभी भी है, तो कंज्यूमर फ्रेंडली काफ़ी होता चला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 2003 के पहले इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ किसी को भी मालूम नहीं था कि कैसे डिसाइड होता है, लेकिन आज की तारीख में हर आदमी को मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ डिसाइड होना है और पेपरों में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, आप जा सकते हो। वो कंज्यूमर फ्रेंडली मेजर्स हैं। और जैसे फ्यूज कॉल्स भी बहुत तेज़ी से अटेंड होते हैं आज की तारीख में। फ्यूज कॉल्स जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे पास जो लास्ट फिगर था कि 1 या 1.5 घंटे के अंदर फ्यूज कॉल्स अटेंड होते हैं। मतलब कुछ जगह आधे घंटे के अंदर, कुछ जगह 1-1.5 घंटे के अंदर। और कोई भी कंप्लेंट होती है फ्यूज कॉल्स की, तो हम लोग भी उसको मैं पर्सनली लेवल पे लेता हूँ उसको, कि फ्यूज कॉल्स अगर किसी के घर में या हॉस्पिटल्स या वगैरह में फ्यूज कॉल्स अगर लाइट ऑफ हुई है, तो वील हैव टू सी कि हाउ टू मॉनिटर दैट सिस्टम। तो अपग्रेडेशन चल रहा है अपग्रेडेशन हर एक जगह सिस्टम। तो ये जो टेरिफ डिज़ाइन का बात है, हम पहले बात कर रहे थे, तो अगर हम त्रिपुरा का मॉडल को बाकी स्टेट से कंपैरिजन करेंगे तो आप कैसे उसको रखेंगे? मैं खुश रहूँगा, मैं खुश हूँ कि हम लोगों ने 5 साल में एक भी पैसा नहीं बढ़ाया, और ये शायद पूरे कंट्री में कहीं नहीं हुआ हमारे अलावा, हम लोग के अलावा। और हम लोगों ने अभी नहीं, कहीं पे नहीं हुआ, हर जगह बढ़े ही हैं रेट। और हम लोगों ने कमी की है, हम लोगों ने 5% का एक डिस्काउंट दिया है कि कैश कलेक्शन करने के लिए। जैसे अगर हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है, हमारे घर में अगर 3,000 रुपये का बजट है, हमारी प्रायोरिटी होती है तो फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए। तो इसको हम लोगों ने कंसेप्चुअली लाने के लिए पहली बार इस कंट्री में हुआ कि भाई कोई आदमी ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर रहा है तो हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं स्ट्रेट। वो अगले बिल में सेटल हो जाता है और पूरी तरीके से सेटल हो रहा है, और उससे कैश रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ये है। और ये आपको जैसे मैंने बताया कि हम लोग की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। प्रीपेड या 5% डिस्काउंट हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया। कोविड के समय पे हम लोगों ने एक और राज्य शासन ने मुझे ऑर्डर दिया था कि कोविड के समय पे लोग बिल नहीं पे कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है, कमर्शियल नहीं है। तो हम लोगों ने एक ऑर्डर दिया था कि कोविड बिजली के बिल ना पे करने की वजह से किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी डोमेस्टिक कंज्यूमर की। और वो उसको पूरे देश ने बाद में अडॉप्ट किया। बाद में महाराष्ट्र में आया, यूपी में आया, हर जगह अडॉप्ट हुआ, लेकिन सबसे पहले त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ था। आई थिंक 4 अप्रैल 2020 को हुआ था, और उसके बाद बाकी जगह पे बाद में अडॉप्ट हुआ। तो इसी तरह 5% के लिए भी स्टडी चल रही है। एक प्रयास करके एक कंपनी उन्होंने कहा कि हम लोग को स्टडी करनी है कि 5% के रिबेट करने से कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। अल्टीमेटली हम लोग को भी ये देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हेफ्टी डिस्काउंट देने पे तो अगर बिजली की कीमत 5 रुपये ही है और हम वैसे भी 5 रुपये 10 पैसे में ही बेच पा रहे हैं, तो 5% उसमें डिस्काउंट देंगे तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो वो नहीं होने चाहिए। तो उसकी वजह से हम लोग पूरी तरह से बैलेंस आउट करके चल रहे हैं, बट 5% का एक अच्छा रिस्पॉन्स लोगों में मिला है। इसके अलावा हम लोग डिस्काउंट को अभी हम लोगों ने एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल मिशन स्टार्ट किया, उसमें भी हम लोगों ने ये बोला है कि किसी भी तरीके से अगर किसी भी जल मिशन में अगर कोई कनेक्शन की रिक्वेस्ट आती है तो आपको 60 दिन के अंदर उसको कंप्लाई ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कॉम्स को ये भी बोला कि मानसून के समय पे झाड़ वगैरह लग जाते हैं, क्लीन लग जाते हैं, उसकी जगह झाड़ टूट के वायर पे गिरते हैं, उसकी जगह इलेक्ट्रिकल तो उन सबको हम लोगों ने जुलाई में हम लोगों ने जब एक जून में एक पानी की एक उसकी वजह से बरसात की वजह से जो हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने एक डायरेक्शन दिए थे कि सब स्टेशंस को मेंटेन करो, लाइनों को पूरी तरह से क्लीन करो कि कोई झाड़ गिरे नहीं, तो उससे आउटेजेस को मिनिमाइज करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं टेक्निकली और कमर्शियली कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को त्रिपुरा को आगे बढ़ाएं। और त्रिपुरा वैसे भी एक यहाँ के इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है त्रिपुरा इनका TSECL फॉर बाय ऑल मीन्स। सर अभी सेफ्टी का इशू जब आया ही है तो कंज्यूमर और कॉरपोरेशन और कमीशन के अलावा भी बीच में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। तो काफ़ी जगह त्रिपुरा में ये हुआ है कि वो जो नया लाइन बना रहा है कि तो इसके बगल में ही एक एग्जिस्टिंग लाइन है, HT लाइन है, तो कभी पोल का इरेक्शन के वक्त पोल लग गया और बहुत सारे जो लेबर्स हैं उनके मौत हो जाते हैं।
तो जो एजेंसीज हैं सेफ्टी मेजर्स को लेके उनका रवैया बदले, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? बेसिकली ये सीए का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, वो बेसिकली उनके रेगुलेशंस हैं 2010 सेफ्टी रेगुलेशंस हैं 2010 पे है और 2016 पे बनाए हैं, रिवाइज किए। उन लोग भी अपडेट करते चले जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि बेसिकली रोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट्स ही सबसे ज़्यादा हो रहे हैं कंट्री में। तो बेसिकली उसके लिए भी उन लोग भी पूरी तरह से रिवाइज, जैसे आपने सेफ्टी के बारे में बोला कि ये ऑलरेडी प्रोविजंस हैं कि एक वायर से घर कितनी दूर होना चाहिए और क्या है, मतलब घर अगर घर के सामने एचटी वायर जा रहा है तो उसके से घर की सीलिंग कितनी दूर होनी चाहिए, ऑलरेडी सीए के रेगुलेशंस में। बट रेगुलेटर्स का बहुत लिमिटेड रोल है इसमें, बट हम लोग देख रहे हैं इसको भी कैसे मतलब इसके कोई प्रोटेक्शन एक्टिविटी ली जाए। अभी एक एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोगों ने एक रिपोर्ट मांगी भी थी। एक एक्सीडेंट कहूँगा तो चोरीलाम में जो तो उस incident पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट मांगी भी थी, रिपोर्ट आई भी है, उसका हम लोग एग्जामिन भी कर रहे हैं कि उसके लिए अगली बार से ऐसा ना हो, उसके लिए हम लोग को क्या क्या हम लोग क्या डायरेक्शंस दे सकें। मतलब सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं आपका। सेफ्टी को भी हम लोग पूरी तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। জনবু, আপনার কাছে আসবো যে আমরা সবসময় তো বলে থাকি যে যখনই বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে কিংবা সামান্য মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে আমরা সবসময় দোষটা হয় কর্পোরেশন না হলে কমিশনের ঘাড়েই চাপিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু নাগরিক হিসেবে ভোক্তা হিসেবে আমারও তো অনেক কিছু দায়িত্ব আছে, আমাদেরও তো অনেক দায়িত্ব আছে। তো এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটাকে সঠিক রাখার জন্য একজন সাধারণ নাগরিকের কিংবা ভোক্তার কি কি দায়িত্ব পালন করা উচিত? দেখুন, ভোক্তার দায়িত্ব বলতে কোনো ভোক্তা যাতে অবৈধভাবে ইলেকট্রিসিটিটা ব্যবহার না করে, হুক লাইন যাতে না লাগায়, তাহলে সবার জন্য এটা ভালো। আর দ্বিতীয়ত আমরা যে এটা রিবেট সিস্টেম করে দিয়েছি, যে আপনার বিলটা ডিউ টাইমে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিলটা দিয়ে নিন, বিলটা দেওয়ার পরে আপনি এটা 5% ইনডাইরেক্টলি বিদ্যুৎ কম রেটে পাচ্ছেন। বিদ্যুৎ আমরা এই 7-8 বছর না বাড়িয়ে উপরন্তু ইনডাইরেক্টলি আমরা 5% কমিয়ে দিচ্ছি। একটা ভালো সুনাগরিক তার বিলটা যদি সময় মতো দিয়ে দেয়, উনি পরের বিলে 5% মুকুব পাচ্ছে, এটা অনেক বড়। আমার জানা নেই ভারতবর্ষের অন্য কোনো স্টেটে এই 5% রিবেট আছে, কোথাও নেই আমাদের জানা মতো। তাহলে কি আমরা কনজিউমারদের জন্য আমরা একটুটুকু করতে চেষ্টা করছি, কনজিউমাররাও যাতে ঠিক সময়ে বিলটা দিয়ে দেয়, বিলটা দিলে ওদের ওই সুবিধাটা ভোগ করতে পারে। ওটা সুবিধাটা ভোগ করতে পারলে ওনারাও খুশি হবেন বা কর্পোরেশনও সময় মতো টাকাটা পেয়ে গেল। এটা সিস্টেমেটিক ইয়েতে চলবে সবারই। আর বিল যারা দেয় না তাদের পক্ষে তো এই লাভ নেওয়াটা সম্ভব না। যারা সবসময় বিল দিয়ে দেয়, অনেস্ট কনজিউমার, ওদের জন্যই এই রুলটা। আচ্ছা, যেটা ভারতবর্ষের আর কোথাও 5% ইয়ে নাই। উল্টা বিদ্যুৎ বাড়াচ্ছে অন্যান্য স্টেট, আমরা ইনডাইরেক্টলি কমিশন 5% কমিয়ে দিয়ে কনজিউমারদের সুবিধা করে দিচ্ছে। এবং বিগত বহু বছর ধরে ট্যারিফ চার্জ বাড়ানো হয়নি, অনেক বছর 14-15 পরে আর এখন 2022, হ্যাঁ 8 साल चल रहा है भीतर সেম রয়েছে। উপরন্তু আমরা 5% করে দিয়েছি, এটা কমিয়ে দিয়েছি না বাড়িয়ে। তো এটার সুফল কনজিউমাররা নেওয়া উচিত, এটা ভালো হবে। एकदम। असंख्य धन्यवाद আপনাকে জুনবু, एंड आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर शो पे आने के लिए। और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमने टचअप किया है ताकि आम लोग समझ सकें उनको और रेस्पॉन्सिबल बने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की और सेफ्टी की तरफ। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা মূলত আলোচনা করছিলাম ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন বিগত বেশ কিছুদিন ধরে যেই সকল নীতি নির্দেশিকা নিয়েছে এবং সাধারণ ভোক্তাদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা রাখছে সেগুলো সম্পর্কে আপনারা যেন ওয়াকিবহাল হতে পারেন এবং একজন দায়িত্ববান ভোক্তা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারেন। এবং তার পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে চেয়ারম্যান ছিলেন ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের ডি রাধাকৃষ্ণন স্যার। উনি বলছিলেন যে কি কি বিষয় আমাদের মাথায় রাখা উচিত ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশনের সময় এবং আগামী দিনে এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে কীভাবে আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হবে সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন মেম্বার ল জীবনকৃষ্ণ সেন, উনিও বলছিলেন যে আমাদের কী কী দায়িত্ব পালন করা উচিত। এরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে আসব। দেখছেন দূরদর্শন ত্রিপুরা, দেখতে থাকুন। নমস্কার।